our esteemed speakers, Muhammad Arif and Muhammad Ahsan Aslam. These also belong to the 2011 batch. And as your message, Taha, the session has been already started. We have just started session. We were waiting for the participants के maximum participants join कर लें ताकि कम से कम उनसे जो है वो आगे मिस हो. So this is the webinar in which we are going to have a look at the study and employment opportunities in the countries of Germany and Finland, as we have two real-life examples and where we can get first-hand knowledge from these two alumni members. They are my class fellows as well. I'm really thankful that they have taken out their time. And these are the program details, how we are going to carry forward this seminar. After the introduction, our first esteemed speaker, Muhammad Arif, is going to present, and then Muhammad Ahsan is going to present. And then from 2:35 to 3 p.m., we will be having a question answer session. And then from 3 to 3:15, our Honorable Department Chairperson, Dr. Muhammad Rauf, will give vote of thanks, and then we will close the session. Before moving forward, let me introduce our first esteemed speaker, Muhammad Arif. And he's a technical project manager in Nokia Solutions and Networks in Oulu, Finland. He did his MSc Wireless Communication Engineering from University of Oulu, Finland, and he has a graduation in Electronic Engineering from Dawood University. He is the alumni of 2011. Then we have our second esteemed speaker, Mohammad Ahsan Aslam. He's a firmware test engineer in Honeywell, Ulster, Germany, and he has a master's in electrical and computer science from University of Rostock, Germany, and he has a graduation in electronic engineering from Dawood University, and he also a member of what you are going to take away from these webinars, from this webinar. After attending this webinar, you will be able to know the opportunity of higher education, Germany and Finland, and whether those opportunities are state-funded, scholarship-based, or you need to do investment for availing these opportunities. And after getting graduate from universities, from foreign universities, what are the employment opportunities there for participants? So moving forward to Muhammad Arif, our first speaker. I'm going to stop my screen sharing here so that Arif can screen share and then he can start the presentation. Over to Muhammad Arif. Thank you very much, sir. All right. Hello. Assalamu alaikum, everyone. Thanks, Badar Bhai, for the introduction. Okay, so let me start sharing my screen. Hope you can see what I'm sharing now. Sorry, just give me a second here. I'll share it from a bigger screen. All right, so I'm about to cover the study opportunities and how is it working here in Finland. Here's how I have divided my time. So I'll speak for about 30 minutes. I'll give a quick background of who I am and how I ended up here in Finland and what am I doing currently, and a bit about why Finland is a good destination for students who are aiming to study abroad. And then for the major portion of the time, I'll be covering the opportunities, which is the primary focus of this webinar. So welcome all. I hope you have a lot of questions, but yeah, we can tackle them later in the Q&A session.
All right, so let's go. So my name is Muhammad Arif, and I'm from Gilgit-Baltistan region of Pakistan. I belong to Skardu district. I was in the 2011 batch in DUT, and I did my graduation in electronics engineering. Graduated in 2014, 15, early 15. Then I did my master's from University of Oulu, Finland in wireless communications engineering. It was quite some change, as you could see, from embedded systems to wireless. But anyway, then later on, I started my doctoral studies somewhat in the more towards the IT field. It was network functions virtualization on the core side of the network. But later, somewhere in 2019, I decided to switch to industry. So I did a halt on my PhD, and then I started working in Nokia as an RF system integration engineer back in 2019. And over the years, I have worked on various roles within the company. So just for your information, that it's the same Nokia that used to manufacture mobile phones that we have used across the world. But since 2010 onwards, somewhere around that time, Nokia is nowadays telecom equipments vendor and is supplying telco equipments to major customers in the world, operators primarily. So quite some journey. I've been here in Finland for around 9 years. I have decided to settle down here completely. So I have my family here as well. So, but yeah, part of my part of the time I worked in academia. I'm still having intention to complete my PhD at some point, but yeah, hopefully that happens. But anyway, I work in R&D, so we have an R&D factory here, which employs about 5,000 people around, including production and research. So I work in R&D mostly in the massive MIMO and RRH products that Nokia produces for its customers. So that's about me. But if people are interested to know more, I have posted my LinkedIn profile and some publications that I have did over the years. So, okay, moving on. Where am I? So, as you could see here, okay, let me put the pointer also. So Oulu is in the Pohjois-Pohjanmaa region of Finland. It's very close to the Arctic Circle, or in other words, I think you might have heard of the Finnish Lapland region. So I think starting here, the Lapland region starts. So I think Oulu. Sorry, was there some question? Okay, so it's in the northern region of Finland, and Finland in at large has a population of something like 5 million. It's a country half the size of Pakistan, but there's only a handful of people. But this country has a long history of technology, and it's nowadays becoming a hub of startups, AI, and Nokia at some point was about, if I'm not mistaken, 2.5 or 3% of the total country's GDP. It's getting there again, but anyway, so that's why the title says that it's called the Silicon Valley of the North.
So it got its name because of the research and innovation, so Olu is basically employing a lot of immigrants from tech background, and there's a lot of manufacturing, production, R&D ongoing here. Uh, so the region is quite close to Sweden in the north, so it's about 1.5 hours drive from here, and Norway is also easily accessible. All right, so then I'll now slowly turn towards the actual topic of our presentation today. So why Finland? So Finland, like you all might have heard, that from basic school education till university, it's highly ranked because of its education system. As you could see, I have gathered some data from statistics published on the internet. So I'm not sure which year was this from. I think it's from 2024, and it's according to the education index, it's somewhere ranked around 6. Rightfully so, because of the structure of education they have. They put a lot of money, and for the locals, the education from basic schooling all the way to the university is totally free. And earlier, when I came here 2015, it was still free for even for non-EU international people. But recently, starting, I would say 2018, 19, they have started to get some fees. But there are still possibilities of scholarships and so on. So, but yeah, that's that. And then one evaluation factor that Finland is quite known for is the quality of life they have. There are pretty huge taxes here that people who work have to pay, and that's how the society is running. And based on these statistics of the World Happiness Report, Finland is #1 in I think 6th year in a row, if I'm not mistaken. So and then some other points of how we would see in a day-to-day life, women are empowered in every sorts of jobs that there is, be it technical, managerial, or like study related. So you would see it's an equal representation of workforce. It's quite a safe and peaceful country. I think the best part is because of the heavy taxes here, it's sorted out like as a social setup. So you would pay while you work and then enjoy the unemployment benefits if you don't have a job or a family to raise and so on. Then if you think that it's a good country for you and your kids to settle down, this is the timeline currently that you could get citizenship here after living continuously for 5 years. And there's some language test formalities you have to do, but nevertheless, the period is quite short. Okay, a bit about how employment looks like. For sure, in these European countries, there's often issues of language barriers, but when it comes to big corporations, and especially I would stress on like I think our DUT engineering faculties, most of them, excluding few maybe, because the way the education system is structured here, you can easily switch faculties. Even if you are a computer science graduate, you can do, for example, wireless communication engineering, electrical, mechanical, whatever. So you have to just qualify to the basics that the program demands. So there are some statistics I gathered. This is also public, that over the years. So as you could see, when back in 2015, when I came here, employment was not that good, even in academia, because the whole country was recovering from the economical situation,
partly because of the Nokia's decline back in the days. But then since then there's a boom in IT sector, especially. So as you could see, the graph has gone up, and maybe it started to drop down a little bit in recent 2 years for obvious reasons, geopolitics, or then due to wars which are happening around. But I could say as an insider here that there's still possibilities to get jobs. I think there was a period uh, somewhere in 21-2 that a lot of Pakistani students who came to study here, they got jobs easily within a few months of studying. So and then about the average incomes, I think it's they pay you good. The payments are usually in hourly basis. So the amount of work hours you do, you get paid for that. But so it comes with a high quality of life. But then obviously the taxation here is progressive. So जितना जितना आपकी इनकम प्रोग्रेसिव है उतना आपकी taxation is. And then they have strong labor market law. Then we have strong labor market laws here, which also protects your in certain layoff situations, for example. Okay, so I'm left. Sorry, was there some question? Okay, so I'll continue. So keep their mics muted so that we should avoid distractions. all right, so I still have I have some 10 minutes, 15 minutes to speak. So I'll focus to the actual part. So like I said, so I gathered some data. It's not an easy task. But the good thing is that there's a lot of work done from the PSA Finland forum, and there's a detailed webinar of something like 4 hours. I have put all the links here, so if I'm not able to give a good overview here, so here's you can always refer to these pages and see. But I have still tried to broken down a bit so that you got an overview of what are the opportunities. So here's the bit of the education structure here. Usually there are like universities and then applied sciences universities. So applied sciences universities are more focused on skill-oriented learning. The degrees are a bit shorter. There's less research. And these applied sciences degrees are usually quite competitive in a sense that they require that you should have let's say at least 3 years of work experience in the field and a pretty strong background of the area, and then you should have like a good research proposals and that kind of thing. In the universities, it's a bit different. It's a bit more research oriented. This is well suited for academia. Back in the days when I came, it was the admissions were less competitive, but within the past couple of years, due to the influx of, I don't have the statistics here, but due to the influx of the international students that are applying, काफी competitive हो गया है. I think if I'm not mistaken, the rejection ratios in some universities are even to close to MIT and the big tech universities in the world, in the US. So, because the reason is because these universities have like a threshold of students that they could take. So उनके पास limited seats हैं, इस वजह से rejections काफी high हैं compared. But yeah, this is just for your information. Then about I think I assume that इस webinar में ज़्यादातर masters के वो students हैं जो masters में admission लेना चाहते हैं, but there's always possibility for students who are looking for undergraduate options or even PhDs. So you have to then choose
what's your target, and हर उसकी अपनी requirement. Okay, so मैंने थोड़ा सा इसको break down किया है. So I think if you were to look for opportunities, I think this is the page you have to go. In my opinion, these are the steps that you have to follow. I think, and the good thing about this portal is that it's pretty well designed. It's self-explanatory. If you just start using it, you'll know what to do. You can filter out universities, you can search for courses, and then see what are the requirements and so on. But nevertheless, still, I would say that these webinars, which are there on YouTube, and even there's a tutorial for the same the study info page to how to navigate to the page and search for courses. So I'll just go through step by step for these. Okay, time is running fast. I'll be a bit quick now. So मैंने यहाँ पे एक Excel post किया है. This Excel basically lists all the universities there is and all the programs. So, and then there are also mention of how much grade you would need in IELTS and so on. Please have a look. I think the first step you have to do, go to this page, and then you should have a clarity of what are you targeting for. Maybe this list of universities you could check and then navigate through this page. And like here, some points, for example, you should keep in mind that some programs are more competitive than others. So you have to assess yourself and then try to avoid spots which are, which have just one only principal investigator. So go for, like, depending on if you have really good grades, good IELTS score, and a good work experience, you could definitely go for much competitive programs. Like Aalto University is quite famous for tech. It's maybe even in the top leads in the world. Then I think there's a connected cost, obviously, depending on the program you are approaching. IELTS nowadays is quite expensive. There are attestation formalities and so on. So there's a cost factor. There's you have to narrow down what kind of programs you want, and then whether it's a bachelor's, master's, or PhD. Okay, so then you have to do a bit of organization. Obviously, you have to appear in an IELTS. I think for the mandatory documents, similar, your degrees attested, your transcripts attested, you need to get them verified from HEC, Foreign Office. You have to work on your resume. There's a separate guidance on these webinars, what kind of resume should be good for these reasons. Obviously, recommendation letters matter a lot. Please choose wisely from whom you are getting your recommendation letters from. It preferably be somebody who you know professionally but not personally, and somebody who knows your work. And then I think the biggest of all is your letter of motivation, and there's a very good guidance how to make a good motivation letter in these documents that I shared. But I think, in my opinion, it should be a bit research oriented, and it should like matches to the requirements of the program that you're applying, and like how you would do like research publication, use references. I mean, so when they look for I think maybe it's in the next page that maybe in the even next one, I'll go through a bit more that what's the selection criteria when it comes to your application. So I think the letter of motivation is an essential part, and it has the biggest score. So you have to, in order to qualify for the next rounds, you have to have a certain score, which includes your GPA, your letter of motivation has the biggest number, your IELTS score, and overall your application. All right, so
the application round opens somewhere in December, early December, depending on the university. Some stays longer, some stays shorter. And usually, I think the application rounds are closing end of January, and then you would get acceptance offer somewhere around March, April time. Then later you have to start with your resident permit or the visa process, and somewhere in and there's a processing time. Nowadays, I've heard that the student visa processing times are quite short, and even people are getting in weeks. But then later in August, start of September, the orientation begins, and then you start your classes. So that's the timeline. Then I think I was saying earlier that one thing to note that nowadays, due to the increasing competitiveness of the programs, they have included rounds of, in some programs they have included rounds of application. So round one, round two, and then there's sometimes interviews also. But some programs are easier than others. So maybe one tip is also that because people are looking for employment opportunities, scholarships, so always look for programs which are connected to strong research centers which have really good government funding. So usually there's more options for you to get jobs or fund or even good scholarships. I know that Nokia as a company is also giving scholarships to students who are like, for example, having a tech related or telecom related degree, to be specific, in like, for example, Tampere University. Tampere is a city and in Finland, and Tampere University still is giving 100% scholarship. There's a university called University of Eastern Finland. They have a very good program, and there's many, but uh, just a few from the top of my head. But yeah, please consider all of these factors when you are applying. So motivation letter matters a lot. Gather good recommendation letters. Do like your extracurricular activities, volunteering works, your job experience, so on. Everything matters. All right. Okay. So my time's up. I'll still, sorry, but I'll still take 3 to 4 minutes more. Okay. So then once you have okay, once you have got the good news that you are selected and so on, then the process of resident permit begins. MIGRI is the organization which tackles all of the immigration related formalities. So so I have posted the link here. You should find all the details, and then you would do your actual application in Enter Finland. And for embassy visits, you have to go through the VFS Global agency. Okay, then obviously you would have to appear in an interview. You need to show a bank statement that you can. Depends. Sometimes I know that students, while they have got their admission, are also hired for some research assistant positions. I know some examples, for example, from the 6G flagship program here, where I was working earlier, Center for Wireless Communications, that when they were taking students, I know a couple of Pakistanis who got the research assistant positions right away while on their admission. So depending on your situation, you might have to show some money for your statements. I think it's about something like 7,000 euros annually. So you have to show that you can finance yourself if you don't get a job. So, but you will find good amount of details in these webinars and also on the MIGRI pages. Okay, one last thing. For people who are looking for PhD positions, people who have masters already, there's a very good doctoral education pilot starting this year. I have listed down the amount of funding different programs have got. I think altogether there's 1,000 PhD positions open across Finland, and these are 3 years PhD program. Usually a PhD program
lasts longer. But in this case, uh, this is shorter, and it's an initiative from the Finland government to have more like international research enthusiasts here, and every university has got some quota. So please have a look on this particular if you are interested to do a PhD. So for your information, PhD is a full-time job here in Finland. So you get like a monthly salary. Um, so like for every, I would say that this is not tech specific. So for every field, there should be some option in different universities across Finland. So this is something pretty promising in my opinion. All right, then quickly about job opportunities. I think there's two tracks you would take: academia or industry. If you feel that you like a student by default can work, I think it's around that. I'm not sure if it's entirely 30, but around 30 hours a week. When you get your resident permit, you can work while you are studying here. There are part-time jobs available, but it depends a little whether the city is bigger or smaller. But over the years, I would say that post-COVID, these smaller delivery jobs have become more common. And I know that a lot of recent students who have come here in Oulu specifically, they are working these kind of jobs to support themselves while they are studying. And then usually universities and then the research centers have no language barriers. You can always start an internship. So I think the program by default gives you an internship. It can be paid, it can be unpaid, depending on the funding situation, but you can easily get a paid internship in universities. And then you can continue thesis, and then you have your research journey here. And then there's also option that you could have your internship in the industry, and then you do your thesis and then continue working there if there are like open positions. So the job market depends a bit on the overall global situation, financial. It goes up and down, but at least for the past couple of years, I could say that the employment rates for people like us who have come from abroad are really good. All right, so that was all from my end. Thanks a lot for active listening. So I'll talk to you more during the question and answer session. So thanks a lot. Badar bhai, over to you. Thank you very much, Arif. It was a really informative discussion, and I'm very much thankful. आपने माशाल्लाह से टाइम निकाला अपने मसरूफियत से और हमारे दाऊदियंस को यहाँ पे आप अच्छा गाइड किया आपने. And students are asking that whether they can get those important links and documents. So if possible for you, so kindly share in the chat room so that during the event, after the event, they can get benefit from it. And now, Right away. And yeah, also, I would link my contact. So somebody, if somebody also needs additional help, please feel free to connect, email or whatever. So I'm happy to help. grateful, grateful. Thank you very much once again. And now I would request our esteemed speaker, Mohammad Ahsan. Ahsan bhai, kindly please start your presentation. Thank you. अस्सलामुअलैकुम. थैंक यू बदर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए. और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके. व्हाट कैन यू सी ऑन माय स्क्रीन? आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है अभी? मतलब कुछ बता भाई. पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि दे कैन सी योर स्क्रीन. बता भाई आप पहले ये बता दें कि स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है. आपकी जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें स्लाइड नंबर 1 शो हो रही है हमें. ओनली साइड नंबर 1. यस, और उसमें साइड साइड पे उसकी जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं वो शो हो रही हैं. अच्छा, तो फिर ये गलत स्क्रीन पर है. 1 मिनट मैं आपको
And now, सही ठीक है। it's correct view. Assalamu alaikum, everybody. I am मोहम्मद एहसान असलम। मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन से जो है वो इस टॉपिक का आगाज़ करूँगा। मैंने जो है वो अपना बैचलर स्टडीज़ या ग्रेजुएशन जो है वो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 2011 से 2015 के दरमियान ख़त्म किया इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फिर मैंने कुछ अरसे पाकिस्तान में जॉब की। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए जर्मनी आया, और यहाँ पे मास्टर्स करके फिर मैंने अपनी एक रिसर्च और अपने लिए एक्सपीरियंस के लिए मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी-कैसी अवेलेबल हैं जर्मनी में, किस-किस तरह से आप आ सकते हैं, और किस-किस तरह की फ़ील्ड जो है वो बहुत बूम कर रही है। या तो आज तो आज का इस टॉपिक में मैं कोशिश करूँगा कि इन सब पॉइंट्स को कवर कर सकूँ जितना हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट जर्मनी, कि जर्मनी की कुल आबादी कितनी है, और उसमें जो है वो स्टूडेंट्स या जो बाहर से आए हुए लोग कितने हैं, और जो जर्मनी सबसे ज़्यादा फेमस है जो बाहर से लोग आते हैं, वो उसकी वजह से जो है वो ख़ास फ्री एजुकेशन है। तो जर्मनी का जो कवर्ड एरिया है वो पाकिस्तान के अगर कंपेयर किया जाए तो वो हाफ है, और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है पाकिस्तान के मुकाबले में, और उसमें से भी जो नेटिव जर्मन्स हैं वो तकरीबन हाफ हैं। So main point here was that we only have half the native German. So असल में जो नेटिव जर्मन्स हैं और जो नॉन नॉन नेटिव जर्मन्स हैं, तो नॉन नेटिव जर्मन्स जो हैं वो मोस्टली दूसरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, और जर्मन भी अच्छी बोलते हैं, मगर उनके साथ अमूमन मसला ये होता है कि वो इंग्लिश को जो है वो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे जो अमूमन इमिग्रेंट्स हैं वो सीरिया से हैं, या यूक्रेन से हैं, या इटली से हैं, या तुर्की से हैं, तो उनकी जो मदर टंग है वो दूसरी है अमूमन। तो अमूमन की इंग्लिश जो है वो इतनी बेहतर नहीं होती, जबकि जो जर्मन्स हैं, जो नेटिव जर्मन्स हैं, उनकी इंग्लिश जो है वो उनके बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है, जो मैंने पाई, जो मैंने यहाँ पे महसूस किया है। उसके अलावा जर्मनी में जो है वो 16 डिफरेंट स्टेट्स हैं। सो सो दी लॉस आर आल्सो वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो हर स्टेट के अपने डिफरेंट लॉज होते हैं। सो कुछ स्टेट्स में अभी एजुकेशंस पे जो है वो फ़ीस लगा दी गई है, जैसे हैसन में फ़ीस लगा दी गई है, और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में अब फ़ीस लगाते जा रहे हैं। मगर अभी भी बहुत सारी स्टेट्स जो हैं, 16 में से मेरे ख्याल से 2 या 3 में अभी फ़ीस इम्प्लीमेंट की गई है, और अभी भी जो है वो आपके पास अबव 10 स्टेट्स मौजूद हैं जो फ्री ऑफ एजुकेशंस अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने एक छोटा-सा जो है वो स्टैटिक्स आपके सामने शो किया है। तो ये स्टैटिक्स जो है वो बताता है कि कौन-कौन से रिलीजन्स के लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये बेसिकली डाइवर्स religious states हैं। So here we can find different religions as well. So if we move from about the Germany to our main content, it's like yep. सो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो बैचलर स्टडीज़ और मास्टर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स किस तरह से आ सकते हैं, और क्या-क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, और कहाँ-कहाँ से वो अपने प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, और किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बैचलर्स डिग्री डिग्री प्रोग्राम की,
तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम मोस्टली जर्मन में है, मगर यहाँ के जो है वो इंस्टीट्यूट्स अब इसको स्लोली कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश में भी। सो वी हैव अपॉर्चुनिटीज स्टिल that we can find English language bachelor degree program, but it's still quite hard or tough for everybody. मगर फिर भी अगर किसी ने अप्लाई करना होता है जर्मनी के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो उसको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है, जो कि इंटरमीडिएट से पॉसिबल नहीं है, जो कि सिर्फ ए लेवल से पॉसिबल है। अगर किसी के पास इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी ने, तो उसके लिए स्टूडेंट कुलीग की एक हर्डल आ जाती है, जो कि प्योर जर्मन में है 100%। ये फिर वो करने के लिए जो है वो आपको लाजमी जर्मन लैंग्वेज की C1 लेवल आपको लाजमी चाहिए होता है, फिर आप उसकी जो है वो स्टूडेंट कुलीग कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टूडेंट कुलीग जो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट कुलीग के बाद। तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा हर्डल जो है वो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो होती है। बाकी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जो है वो बैचलर डिग्री आपके पास पहले से मौजूद होती है, तो आप जो है वो यहाँ पे हर तरह के जो है वो कोर्सेज फाइंड कर सकते हैं, जो जर्मन में हो, इंग्लिश में हो, या बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों ज़बानों में आपको कमांड चाहिए होती है। उसके अलावा जो है मास्टर्स प्रोग्राम मोस्टली जो है वो 120 ECTs के होते हैं विद मास्टर थीसिस, मगर जो है वो मास्टर प्रोग्राम जो है वो 90 ECTs के भी होते हैं, और सम जो है वो विदाउट मास्टर थीसिस के भी होते हैं। इन इन सब में फ़र्क क्या है? जो मास्टर प्रोग्राम 120 ECTs का होगा, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, बाकी दोनों के बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते। तो इसमें जो है वो एक बैरियर आ जाता है आपके लिए, कि आपके लिए एक रिसर्च की फील्ड जो है वो बंद हो गई। बाकी उसके अलावा जो है वो यहाँ पे 3 तरह की डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। एक को जो है हम हॉक्सुलर कहते हैं, एक को जो है वो टेक्निके यूनिवर्सिटाट कहते हैं, और एक जो है वो यूनिवर्सिटाट कहलाती है। तो जो हॉक्सुलर है उसमें जो है वो ज़्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो 90 ECTs के हैं या विदाउट मास्टर थीसिस के हैं। तो जो हॉक्सुलर से जो लोग मास्टर्स करते हैं, अमूमन वो लोग जो है वो पीएचडीज़ में एडमिशन नहीं या पीएचडी के लिए परस्यू नहीं कर पाते हैं। बाकी जो टेक्निक के यूनिवर्सिटाट है, उसमें जो है वो कोर्सेज़ कम होते हैं, वो टेक्निकल से रिलेटेड ज़्यादा है, जैसे कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, जैसा हमारी दाऊद इंस्टीट्यूट है। और यूनिवर्सिटाट में जो है वो हर तरह के कोर्सेज़ आपके लिए पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर कोर्सेज़ होंगे, आर्ट्स के कोर्सेज़ होंगे, मेडिकल भी होंगे। तो ये इन 3 इंस्टीट्यूट्स में बहुत थोड़ा-सा डिफरेंस है। बाकी जो है वो आपको अगर प्रोग्राम्स के बारे में सर्च करना है कि कौन से प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, तो मैंने एक डार्ट की वेबसाइट आपसे शेयर की है, और स्टडी पोर्टल जो है वो आपसे शेयर किया है। ये 2 मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं इन 2 से बहुत मुतासिर हुआ था, और इनमें जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो इससे जो है वो आप भी सर्च कर सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल प्रोग्राम कौन सा है, और आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और या फिर आपके पास क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके आगे। और सिटी और मतलब सिटीज़ और डिफरेंट चीज़ें आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि कौन सी सिटी में कितने डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं। और एप्लीकेशंस के लिए जो है वो 2 तरीके हैं यहाँ पे, एक यूनी असिस्ट है और एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। तो कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो यूनी असिस्ट से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने खुद के पोर्टल्स से चाहती हैं कि आप हमें एप्लीकेशन भेजें। तो जो यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी के पोर्टल से एक्सेप्ट करती हैं, वो अमूमन फ्री होती हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं
होती है, जबकि जो यूनी एसएस के थ्रू आप अप्लाई करते हैं उसमें फ़र्स्ट की फ़ीस जो है वो 75 यूरो है, उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 20 या 25 यूरोज़ है फॉर फर्दर एप्लीकेशंस की। तो यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल सबसे बेहतर रहता है, वो सस्ता भी रहता है और आपके लिए अच्छा रहता है। तो अभी जो है वो जर्मन इंस्टीट्यूट्स जो है वो बहुत तेज़ी से अपने आप को कन्वर्ट कर रही हैं इंग्लिश प्रोग्राम की तरफ लेके अपने आप को जा रही हैं, तो उसकी वजह से जो है वो अभी इनटेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसमें जो है वो एप्लीकेशंस को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है बहुत इजीली। तो जहाँ कहीं भी आप अगर ये सर्च करें कि कहीं कोई न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया है तो आप उस पे अप्लाई करके इजीली जो है वो मास्टर्स के लिए एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर मैं कवर करूं कि लिविंग कॉस्ट जो है वो कितनी एक पर पर्सन है यहाँ पे जर्मनी के अंदर। So for average cost of living per person is around 1100 for a big cities. If you are living in a big cities like Berlin, Hamburg, Frankfurt, and Munich, they are really costly. Because for first of all, your accommodation is very costly. Then the then the groceries and everything will cost too much in the big cities. But if you compare to the small cities or middle cities, so they will be little cheap as compared to the big cities, especially for the accommodation, क्योंकि आपकी जो मेन खर्चा है वो आपकी एकोमोडेशन का है, और अगर वो आपको सस्ती मिल जाए तो आपके खाने पीने के या मेडिकल इंश्योरेंस या डिफरेंट इंश्योरेंस के इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। और उसके अलावा एक स्टूडेंट जो है वो 22 पर 22 आवर्स पर वीक जो है वो काम कर सकता है किसी भी स्मॉल जगहों पे या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। इट्स डिपेंड if you find a job in a research institute, or if you got a job in your universities, maybe they will pay more. But if you are working outside as a part-time worker in the small restaurants and in the superstores, then maybe they will pay you the minimum hourly wages, which is currently is 12.41 only. जो स्टोर्स हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं वो अमूमन जो है वो 12 यूरो, 12.5 यूरो या 13 यूरो पे करते हैं मैक्सिमम। बट अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप की जॉब आप पार्ट टाइम एज अ जॉब पकड़ लेते हैं, या किसी भी एक बड़े कंपनी में आप कोई पार्ट टाइम जॉब्स पकड़ लेते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, तो वो आपको इससे ज़्यादा पे करते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कभार 15 या 20 तक जो है वो पर आवर आपकी रेट पे कर देते हैं वो। उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स। अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं, आपको छोटे मोटे कोई काम पड़ रहे हैं, आपने कहीं बाहर जाना है या लोकल से बात करनी है, तो वो अमूमन जर्मन लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे। बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में भी बात करने वाले मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो नॉन जर्मन्स हैं वो मोस्टली इंग्लिश नहीं बोल पाते अच्छे से। जो जर्मन्स हैं वो फिर भी इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है। और अगर आपने लोकली कुछ वर्क करना है तो लाज़मी आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर अब मैं इस लिविंग कॉस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इसको कट ऑफ कर सकते हैं या इसको बचा सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं अवेलेबल। अगर आप स्टडी पोर्टल्स पे जाएँ तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। डार्ट की स्कॉलरशिप्स पे जाएँ तो आपको वहाँ पे भी आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाती हैं।
और उसके अलावा एक और सोर्स जो है वो स्टूडेंट एडवाइज़र होता है। जब आप एडमिशन आपके पास आ जाता है एक्सेप्टेंस लेटर, तो आप अपने स्टूडेंट एडवाइज़र से पूछ सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो वो आपको एक पूरी लिस्ट सेंड करेंगे। फिर आप उसमें से जो है वो अपनी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे आप उधर अप्लाई करते हैं। तो आपको जो है वो जो आपको ब्लॉक अकाउंट जमा कराना होता है, अगर आपका स्कॉलरशिप लेटर हो तो ब्लॉक अकाउंट जमा नहीं होता। और मगर आपके पास अगर स्कॉलरशिप्स के लेटर ना हो तो आपको फिर ब्लॉक अकाउंट्स की तरफ ही सेल्फली जाना पड़ता है। मगर फिर भी आप यहाँ रह के छोटे-मोटे काम करके भी जो है वो अपना खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली जो है वो जो फ़ीस हमसे ली जाती है वो टिकट की होती है, कि जो हमारा क्या नाम है ट्रांसपोर्टेशन टिकट्स हैं, या तो फिर हमारी जो है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, तो वो मोस्टली जो है वो 300 के अराउंड होती है पर 6 ईयर की, पर 6 मंथ्स की। तो वो बहुत मिनिमल है। बाकी जो है वो आप अपना खर्चा जो है वो पार्ट टाइम जॉब करके भी अदा कर सकते हैं, या अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो आप उससे भी अदा कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो है वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ आके जॉब सर्च करें, और अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप जॉब के साथ-साथ जो है वो पार्ट टाइम जॉब करें, और फिर जो है वो पार्ट टाइम जो है वो स्टडीज़ को अपने कंटिन्यू करें। तो आफ्टर स्टडीज़ आपके पास क्या स्कोप है जर्मनी में जॉब मार्केट के हवाले से? तो वो थोड़ा-सा मैं जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बहुत सारी हैं। बहुत सारी जो है वो स्मॉल कंपनीज़ जो है वो ओपन होती जा रही हैं। बहुत सारी जो है वो खुलती जा रही हैं, जहाँ पे जो है वो जॉब अवेलेबल होती है। मिनिमम मिनिमम तो नहीं कहूँगा मैं, इसको एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशन कहूँगा, जो इलाके जो स्टेट वाइज़ है यहाँ पे मैंने लिखी है। जो ग्राफ मुझे जो है वो नेट से जो है मिला था। तो इसमें से जो है वो जो आपको वेजेस मिलते हैं एज़ अ स्टूडेंट, आपको जो है वो बहुत सारे टैक्सेस जो है वो पे नहीं करने पड़ते हैं। मगर आफ्टर स्टूडेंट्स जब आप जॉब मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो अराउंड 40% टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है, जिसमें जो है वो टैक्स है, आपकी जो है वो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, और बहुत सारी डिफरेंट इंश्योरेंस आपकी जो है वो उसके अंदर कवर होती है उसी 40% के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें कि जो चैलेंजेस मैं अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, so challenges which are faced by students or jobs or any job searcher, सबसे पहला मसला जो होता है वो रिलेक्टेंट टू स्पीक, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। जर्मनी में जर्मन जो है वो कॉमन है लाजमी, मगर इंग्लिश भी जो है वो एज अ इंडस्ट्रियल लैंग्वेज के तौर पे अब यूज़ होने लगी है हर तरफ। मगर इंग्लिश में भी जो है वो हमें अमूमन दिक्कत होती है, क्योंकि हमने जो है वो हमारा जो माहौल है पाकिस्तान का वो उर्दू स्पीकिंग सेंस मैक्सिमम, तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी तो हमारी नहीं होती है। तो उसकी वजह से मेरे ख़्याल से हम लोग यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा-सा रिलक्टेंस फ़ील करते हैं, थोड़ा-सा सेपरेट फ़ील करते हैं कि हम उधर बात नहीं कर पाते बहुत सारी जगहों पे। सो इंग्लिश एज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाज़मी है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोई उर्दू में समझा नहीं सकता। तो आपकी इंग्लिश इतनी मतलब इतनी कम से कम हो कि आप जो है वो जो टीचर समझाना चाह रहा है उसको आप कैच कर सकें पॉसिबली। उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है वो ब्लॉक अकाउंट है, जो कि अभी जो है वो 11,208 यूरोस हो गया है पर ईयर का। तो कुछ स्टेट्स में जो है वो ये ब्लॉक अकाउंट सिर्फ 1 साल के लिए माँगते हैं। कुछ स्टेट्स में जो है वो अगले साल फिर से वो जो है वो कहते हैं कि आप फिर से इतना ब्लॉक अकाउंट जो है वो ब्लॉक करवाएँ। तो उसके लिए जो है वो आप मेंटली पहले पहले से तैयार हों कि हाँ, इस इंस्टीट्यूट मतलब इस एरिया में या इस स्टेट में जो है वो कौन-सा लॉ चल रहा है। तो उस
उस हवाले से स्टेट लॉ जो है वो आप थोड़ा सा देख के अप्लाई करिएगा अपनी मास्टर स्टडीज़ के लिए जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो है वो जो डिफ़िकल्टीज़ जो फेस करते हैं हम लोग, वो अमूमन जो है वो जॉब सर्च के लिए भी फेस करते हैं। जब हम लोग स्टडीज़ ख़त्म कर लें उसके बाद फिर जॉब सर्चिंग का जब टाइम आता है, तो वो भी हमारे लिए थोड़ी-सी मुश्किलात हो जाती हैं। तो उसके लिए जो है वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले से पाकिस्तान का, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमेशा, कि न्यू जॉब सर्च करने के लिए आपके पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो कुछ ना कुछ। नहीं तो जो आप जब यहाँ पे आएँ मास्टर स्टडीज़ के लिए, तो आपके पास इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन होती हैं। आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें और इंटर्नशिप में अगर आप लगे रहेंगे तो एक तरह से वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होता रहता है। नहीं तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये होती है मास्टर थीसिस के हवाले से, कि आप जो है वो एक इंडस्ट्री के साथ थीसिस अपना कर सकते हैं, मगर आपको उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करे, वो आपको थीसिस ऑफर करे, फिर आपको जो है वो पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप कर लें तो वो जॉब सर्च के लिए आपको बहुत आसानी जो है वो देती है। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूँ, और thank you so much for your listening, and maybe we will move for the question answer session now, and these are some references. So maybe I am now hand over to Badar Mustafa. Can you please carry on from here? Thank you very much, Hello. Hassan bhai. Yep, Badar. It was a really informative discussion, और आई थिंक कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको कैच किया होगा कि हमें इन दो कंट्रीज़ में, जो कि दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़ सकते हैं। And I would request again you as well, Asan bhai, that to please share whatever important links you have in the chat room, so that students can take benefit from it. And now moving to the next segment, which is the question answer session. So I would request all the participants, so kindly, if you have any questions, uh, they can ask the questions here. All right, so the floor is open for question answers. Here, I can see in the list of participants, whoever the question, they can raise their hands. I think one student raised their hand, but again, it disappeared. Yes, so if any question, Abdul, Abdul Ahad and Shakil Ahmad. Sayyid Shakil Ahmad. Yes, please. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. ये मेरा सवाल था, कहते हैं जैसे आपने बोला, कहते हैं जर्मनी के अंदर अगर आपको पढ़ने जाना है तो ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। तो आपने कहा कहते हैं स्कॉलरशिप अगर आपके पास हो तो ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए होगा। तो मतलब ज़्यादातर तो हमने यही सुना है कि ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। मतलब स्कॉलरशिप मिलने की कहते हैं पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल होता है? अ, ये अच्छा सवाल है। असल में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल तो हैं, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ आपके प्रीवियस एजुकेशंस पे डिपेंड करती हैं अमूमन, कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन में कितना स्कोर है। उसके बाद फिर आपको उसके लिए भी जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए भी जो है वो मोटिवेशन लेटर्स वगैरह आपने लिखने पड़ते हैं, ठीक है। वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, पॉसिबिलिटी है, और अगर आप कोशिश करें तो शायद मिल भी जाए। मगर ये एक ब्लॉग अकाउंट एक जो है वो प्रोसेस है, अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम शो करने के लिए नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन? मेरा एक और सवाल था, जैसे कि अभी मेरा कहते हैं 2 सेमेस्टर हो गए ना, तो 13 इयर्स की एजुकेशन भी पूरी हो गई है। तो मतलब बिल्कुल। अभी
जो प्रोसीजर है और बाकी सारी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेशन की, तो कितना टाइम लगता है तकरीबन कि अगर आज मैं जाना सोचूं कि मुझे जाना है बैचलर्स करने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा? ये भी बड़ा अच्छी चीज़ थी, क्योंकि आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के 2 या 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे ए लेवल है, और दूसरा जो है वो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कुलीग है, ठीक है। आपने वहाँ जाके 1 साल जो है वो जर्मन में पढ़ाई करनी पड़ती है। और तीसरा जो है वो ये भी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो 1 साल आप पढ़ाई कर लें, तो वो एक 13 ईयर ऑफ एजुकेशन काउंट हो जाती है। मगर आपको शायद एडमिशन लेटर तो मिल जाए इसके बिहाफ पे 13 ईयर ऑफ एजुकेशन से, मगर इसके लिए थोड़ी सी हर्डल आती है वीज़ा एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप अप्लाई ना करें। बेशक आप अप्लाई करके एक दफ़ा ट्रायल ज़रूर करें, कि हो सकता है कि आपको उसके बेस पे मिल जाए एडमिशन। तो वो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, वो उसको ना एज अ 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए। और उसके अलावा मगर ये है कि फिर आपको जो है वो अपनी फील्ड, जो जैसा आपने यहाँ पे पढ़ाई की है, अगर क्या नाम है एनर्जी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या केमिकल में, तो आपको वो फील्ड जो है वो स्पेसिफिक वहाँ पे आपने सर्च करनी होती है कि आपको वही फील्ड में जो है वो एडमिशन मिल जाए। तो आप जो है वो सिंपल जो है वो तमाम एप्लीकेशंस को एक साथ जमा करें और उसको अप्लाई करें। आप इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पे जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके हवाले से। और फिर आपको जो है वो भर के जमा जब आप करवाएंगे, तो फिर आपको उस हिसाब से जो है वो एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए जो है वो 2 हमारे पास जर्मनी में जो है वो सेशंस ओपन होते हैं, एक विंटर सेशन है और एक समर सेशन है। तो विंटर सेशन जो है उसके लिए एडमिशन जो है वो अमूमन ओपन होते हैं मई से लेके जुलाई तक, और जो है वो समर सेशन के लिए जो है वो दिसंबर से लेके फ़ेब तक जो है वो ओपन रहते हैं सेशन एडमिशन्स। तो आप उसमें किसी में भी जो है वो अप्लाई करें, आपके पास एक्सेप्टेंस आए, फिर आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। एनी मोर डाउट? जैसे मैंने पूछा था ना कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन में और जैसे एम्बेसी में जाते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें कितना टाइमिंग लगती है, मतलब कितना टाइम लगता है मुझे, 1 साल जैसे 1.5 साल इस तरह, तो ऐसा नहीं है? मेरे ख्याल से आप प्रोसेस टाइमिंग वीज़ा की प्रोसेस टाइमिंग आप पूछना चाह रहे हैं। नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा की जो है वो प्रोसेस टाइमिंग 4 वीक की होती है, मगर अगर आपको अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी होती है, अपॉइंटमेंट आपने लेनी होती है, तो वो ऑनलाइन जो है वो आती है अपॉइंटमेंट। अगर आप सही टाइम पे उसको कैच कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, तो आप कैच कर लें। बाकी जो पंजाब वगैरह में है वो अपॉइंटमेंट जो है वो खुद देते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो वो खुद अपॉइंटमेंट आपको देते हैं कि आपकी 1 साल के बाद अगर अपॉइंटमेंट है, तो मतलब आप उसमें फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अगर 1 साल के बाद की अगर अपॉइंटमेंट आपको दे रहे हैं तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो उनके पास बेसिकली इतने सारे जो है वो पहले से एप्लीकेंट मौजूद होते हैं। एनी मोर डाउट? जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। very much. We have more questions as well. As per the hand raise, 20 24, he or she has also raised hand, and Taha as well has raised hand, but Abdullah lower earlier. Dr. Samir also raised hand. So one by one, आप kindly questions कीजिए आप लोग please. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मैं अगर सवाल कर पाऊँ जी। Yes, अच्छा, एहसन, मेरा सवाल ये है कि जो सिटीजनशिप है जर्मनी की, उसके लिए इस वक्त जो पॉलिसी है वो लैक्स की गई है फॉर जो अप्लाई करता है उसके लिए, और ऑल्सो फॉर द स्पाउस, मतलब स्पाउस की जो लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होता है सिटीजनशिप के लिए वो तो सीख ही लेता है, लेकिन स्पाउस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये मैं जानना चाह रहा था, अगर आपकी इंफॉर्मेशन में है। दूसरा सवाल मेरा, अपॉर्चुनिटी कार्ड को इस वक्त बहुत प्रमोट किया जा रहा है इस रीजन में, मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, तो उसका अगर थोड़ा सा बता सकें स्कोप इस वक्त क्या है,
वाकई वो सही है, 1 साल की उसमें मिलती है अपॉर्चुनिटी, उसको अवेल करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान उसमें क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोगों को शायद हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो प्रोफेशनल्स हैं। तो इससे मुतालिक दोनों से मुतालिक थैंक यू। सलाम। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ असल में ना बीच में थोड़ी सी कट गई। असल में आपका दूसरा सवाल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं मेरे ख्याल से पहले सवाल का ना पहले आपको जवाब कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप मेरे ख्याल से दूसरा सवाल ना फिर से एक दफ़ा रिपीट कर दिएगा। जो अभी पॉलिसीज़ जो पहले थी वो अभी मेरे ख्याल से 26 जून को ना अपडेट की गई हैं, मतलब चेंज हुई हैं कुछ तमाम पॉलिसीज़ में। तो जो पहले जो है वो 8 साल पे सिटीजनशिप थी, उस पे आपको B1 जो है वो लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी। अब जो है वो चेंज करके 5 इयर्स कर दी गई है और आपको B1 लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड है लाजमी। सिटीजनशिप के लिए आपको लाजमी है कि वो आप B1 लैंग्वेज जो है वो ताकि आप इंटीग्रेट कर सकें इस कंट्री में इजीली। तो उसके अलावा जो है वो उससे पहले अगर मैं आऊँ नेशनलाइजेशन से अगर मैं पहले आऊँ तो एक होता है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी जो है वो डिफरेंट लॉज हैं। तो उसमें जो है वो पहले जो है वो 21 मंथ्स था ब्लू कार्ड के साथ, और ब्लू कार्ड के साथ जो है वो 21 मंथ्स था और B1 लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी। वो अभी चेंज करके 18 मंथ पे लेकर आ गए हैं। और तमाम जो है वो अ, तमाम जो है वो पीआर के जो डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं हमारे पास इन विद इन जर्मनी, उन सबको थोड़ा सा जो है वो कम किया गया है अब। पहले जो है वो 30 मंथ थे, जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन 5 साल बनते हैं, तो उनको भी अब थोड़ा सा रिड्यूस करके मेरे ख्याल से 27 मंथ कर दिया गया है या 23 मंथ कर दिया गया। न्यू लॉ के हवाले से मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास एक साइट थी, मैं वहाँ से अमूमन जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। किसी भी अगर इमिग्रेशन लॉ के हवाले से मुझे देखना हो या मुझे समझना हो, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसी वेबिनार में जो है वो शेयर कर देता हूँ चैट में। उसके अलावा ये है कि वाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप ब्लू कार्ड के ऊपर हैं तो ब्लू कार्ड की एक स्पेसिफिक सैलरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जो कि है 65 आई थिंक 65,000 पर ईयर हो, तो उस पे आपको ब्लू कार्ड इशू कर दिया जाता है। और मगर यहाँ पे जो है वो जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे कि जिसकी शॉर्टेज हो, उनके लिए जो है वो ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट और कम है। उनकी है 45 है या 43,000 पर ईयर है। तो उस पे उनको जो है वो ब्लू कार्ड जो है वो इशू कर दिया जाता है। उसके ऊपर अगर आप अपनी वाइफ को बुलाते हैं तो उनको जो है वो लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप उसके अलावा किसी और स्टेटस पर हैं या पीआर पर हैं या नेशनलाइज्ड हैं आप, तो कम से कम जो है वो कम से कम जो है वो A1 जो है वो रिक्वायर्ड है सब वाइफ्स के लिए या स्पाउस वीज़ा के लिए। बाकी बात तो यही है कि आपको अपॉइंटमेंट कब की मिलती है। तो अपॉइंटमेंट आपको जो है वो ऑनलाइन जो है वो कैच करनी पड़ती है, क्योंकि वो रात में मेरे ख्याल से 3 बजे के करीब अपॉइंटमेंट्स आती हैं और वो आपने जो है वो पकड़नी होती है। और तमाम जो है वो कराची वाले उसमें बैठे हुए होते हैं कि वो अपॉइंटमेंट कैच कर सकें। और बाकी पंजाब में जो है वो खुद अपॉइंटमेंट्स देते हैं, तो उनके पास वेटिंग लाइन बहुत ज़्यादा है अभी। तो पंजाब से जो है वो काफ़ी मुश्किलात हैं। कराची में अभी तक जो है वो काफ़ी आसानियाँ हैं। डॉक्टर साहब, आपका अगला सवाल क्या था? मेरा दूसरा सवाल था अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है उससे मुतालिक। तहा ने भी कहा है कि वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप पहले बता दीजिए कि ये इस वक्त काफी उसकी मार्केटिंग की जा रही है इस रीजन में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। काफी मैं प्रमोशन वगैरह भी देखता हूँ, तो ये इससे मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये वाकई ऐसा है कि इसको अवेल करना चाहिए? अ, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ये अच्छा है। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसको कहते हैं, ये बेसिकली मैं जॉब सीकर वीज़े की तरह है कि आप जो है वो मैं असल में इसके हवाले से भी एक बात करना चाह रहा था
कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है पहले से, तो वो या तो फिर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकता है जॉब्स के लिए। तो उसके थ्रू जो है वो उसको अगर जॉब कंफर्मेशन मिल जाती है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो ब्लू कार्ड का वीज़ा या जो भी उसका वीज़ा स्टेटस बनेगा, वो डायरेक्ट पाकिस्तान से उसको मिल जाएगा और उसकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ पे डायरेक्ट आ सकती है जर्मनी में। तो अभी बहुत सारे जो है वो दोस्त मेरे इस तरह से आए हैं यहाँ पे भी। तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान से ही जॉब अप्लाई किया और उनको जॉब मिल गई और वो आ गए। बाकी ये जो है अपॉर्चुनिटी कार्ड जो इन्होंने स्टार्ट किया है, वो इसलिए है कि आप जो है वो अगर आप समझते हैं कि आप इस जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं, तो आपको वो 6 मंथ या 1 साल का जो है वो जॉब सीकर वीज़ा के तौर पे आपको दे देंगे। और फिर उस पे आप अलाउ हैं बिल्कुल कि आप जर्मनी के अंदर जाएँ और फिर जर्मनी में बैठ के जो है वो जॉब को जो है वो सर्च करें। मगर उसमें मेरे ख़्याल से आपको स्टिल ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो है वो न्यू वीज़ा कैटेगरी अभी-अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। मेरे ख़्याल से 1 या 2 मंथ ही हुआ है इसको इंट्रोड्यूस किए हुए। Can I add also some more points in this opportunity card? Yes, yes, please. Okay, I'm Taha. Basically, I'm also graduate from Dawood University. Currently, I'm in Germany. एंड मैं सेशन इसलिए अटेंड कर रहा था क्योंकि मुझे मेरे दोस्त को बताना था, फिनलैंड के हवाले से पूछा था, तो मेरे ख्याल से मैं भी और वो भी साथ बैठ के हम अटेंड कर रहे हैं। सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड का जितना मैंने भी सुना है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई मीन वी कॉल इट चांस इन कार्टे हेयर इन जर्मनी। और उसमें ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से, इंडिया बांग्लादेश से, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस, यू कैन कम हियर एंड फाइंड अ जॉब। दूसरी चीज़ ये, जैसे एहसन भाई ने बोला कि ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। करंटली अमाउंट का मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आप जब यहाँ जर्मनी लैंड करोगे विद दैट अपॉर्चुनिटी कार्ड, यू हैव दैट परमिट कि आप यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, टू आप अपने एक्सपेंस को खुद बेयर कर सकते हो। और दूसरा ये कि फ़िलहाल जो लैंग्वेज बोली गई है वो A1 बोली गई है, व्हिच इज़ मैंडेटरी, क्योंकि आपको जब यहाँ पे आना होगा तो आपको ज़ाहिर-सी बात है इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी आपको देने होंगे। A1 स्टिल अ बिगिनर लेवल है वो, बट वो एक आई थिंक एक कंपल्सरी पॉइंट रखा गया है उस अपॉर्च्युनिटी कार्ड में कि आपको वो एटलीस्ट A1 आनी चाहिए। और जहाँ तक सर आपने बात की थी स्पाउस वीज़ा के हवाले से, तो आई थिंक एहसन भाई ने बहुत अच्छा डिफाइन कर दिया। प्लस इसमें ये भी चीज़ होती है कि अगर आप अपनी स्पाउस को, अगर आप यहाँ रह रहे हो, बुलाना चाह रहे हो, देन यू आल्सो हैव टू फाइंड अ परफेक्ट अकोमोडेशन, बिकॉज़ यहाँ पे अकोमोडेशन में ये होता है कि आपको स्क्वायर मीटर के हिसाब से लोग रहने अलाउड होते हैं। अगर आपका कमरा या आपका रूम इतना बड़ा नहीं है कि आप अपनी स्पाउस को बुला सके, देन यू हैव टू फाइंड अकोमोडेशन जहाँ पे आप अपने स्पाउस या बच्चों को ठहरा सको। सो वो चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अकोमोडेशन जर्मनी में फाइंड करना इज स्टिल अ बिग चैलेंज। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट मैंने भी बहुत सर्वाइव यहाँ किया था शुरू में। और दूसरा ये कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से यहाँ पे काफ़ी मसले चल रहे हैं अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन, जो भी एक एक वॉर और इकोनॉमिकली जो भी आसपास जो सिचुएशन चल रही हैं उस हवाले से। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली मेरी खुद की, जब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ से भी काफ़ी ले ऑफ्स और रिसेशंस हुए हैं यहाँ जर्मनी में, क्योंकि अभी थोड़े से ये लोग अनस्टेबल हुए हैं। बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफ़ी हैं। बट द बैड थिंग इज के जर्मनी के और इंडिया के स्पेशली आई वुड से कि बहुत अच्छे ताल्लुक रहे हैं इन टर्म्स के, वो R&D की साइड हो या IT की साइड हो या इंजीनियरिंग साइड पे हो। मैं खुद एक हैम्बर्ग सिटी में हूँ और यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, स्पेशली एयरबस यहाँ पे उनका प्लांट है, और यहाँ के R&D में मेजॉरिटी जो है वो इंडियन, साउथ इंडिया साइड के इंडियंस हैं, और वो डायरेक्टली जो है वो वहीं से हायर करते हैं। मेरे कुछ कलीग्स हैं इंडियन दोस्त जो हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, एंड दे आर सेइंग कि एयरबस जो है वो डायरेक्टली हायर कर रहा है साउथ इंडिया से, बिकॉज इन आई थिंक इन चेन्नई और मे बी आई थिंक इन केरला स्टेट इनका एक अपना R&D प्लांट है एयरबस का। और आई थिंक वो लोग वहीं से डायरेक्ट जो है वो इंजीनियर्स को बुला रहे हैं। सो आई थिंक ये एक थोड़ा सा एक हमें कहना चाहिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तानी नो डाउट यहाँ पे अच्छी फील्ड्स में हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे स्टिल अपनी मार्केट जो है वो बना रहा है, काफ़ी उनके लोग यहाँ काम कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन परमानेंट बेसिस बट ऑल्सो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, के यहाँ पे कुछ ऐसी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं जो इंडिया में काम करती हैं
वो यहाँ पे जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इधर इन आईटी साइड या जो भी इनकी सर्विसेज या टेक्निकल डोमेन होता है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे एक टफ सिचुएशन चल रही है। और या दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट्स इट। या Thank you very much, Ahsan. Thank you very much, Taha, for your feedback. We have more question as well. I don't know the name of the student 20EE24. एक इनका क्वेश्चन है और एक अतहर हुसैन का क्वेश्चन है। तो 20EE, आई डोंट नो योर नेम, प्लीज आप पहले अपना क्वेश्चन कर लिए, देन फिर अतहर। सर मेरा नाम तसव्वर है। बेसिकली अभी मैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के फील्ड से री ग्रेजुएट हुआ हूँ। और मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि जर्मनी लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी या फिर हमें कहीं से सीखनी पड़ेगी? इसके बारे में बता दें। मैंने आपका नाम असल में उसमें क्या नाम है सुन नहीं सका, मगर एक होती है जो आप लोकली बोल सकते हैं। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं जर्मन लैंग्वेज, मगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो जो है वो आपके लिए पीआर या परमानेंट रेजिडेंस सेटलमेंट के टाइम पे, या तो फिर आपको नेशनलाइजेशन के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप B1 का सर्टिफिकेट लाजमी लेकर आएँ। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल 2 इंस्टीट्यूट हैं, टेल्क और गोएथे, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। और जर्मनी भी जो है वो इन दोनों में से किसी एक का भी अगर आपके पास होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी ये है कि बोलने के एतबार से अगर आप जितनी अच्छी बोल सकें, वो आपको एक होता है जो आपने सर्टिफिकेट के लिए पढ़ा होता है, और एक होता है जो आप जो है वो लोगों में रह के सीख रहे होते हैं। जैसे हम अगर उर्दू बोलते हैं तो उर्दू जो है वो हमारी ज़बान अलग है, और उर्दू लुगत जो है वो बिल्कुल अलग होगी हमसे ना, मतलब थोड़ी-सी डिफ़रेंस होगी लाज़मी। तो पढ़ने के एतबार से जो है वो लाज़मी सीखते रहें। सीखने से मतलब अच्छा है, आपको मतलब इम्प्रूव होती रहती है। बाकी ये है कि आपको वो 2 में से किसी एक इंस्टीट्यूट का सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है परमानेंट सेटलमेंट के लिए, या तो फिर अगर आपकी वाइफ़ ने अप्लाई करना है जिसमें आपको A1 चाहिए, या फिर आपने जब नेशनलाइज़ेशन के लिए जाना है तो उस वक़्त भी आपको B1 का सर्टिफ़िकेट लाज़मी चाहिए। एनीथिंग एल्स व्हिच आई कैन एक्सप्लेन मे बी इन योर डाउट? सर वन मोर क्वेश्चन है। प्लीज़, प्लीज़। सर रिसेंटली अभी जो मास्टर के लिए आएंगी एप्लीकेशंस, उसकी काइंडली डेट बता दें। असल में अभी जो है वो ख़त्म हो गई हैं सारी, तो अब जब आएँगी तो वो दिसंबर से स्टार्ट होंगी। तो आपके पास अभी मेरे ख़्याल से इनफ टाइम है। अगर क्योंकि आपने अभी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी है, आपने आइल्स में भी आपने अभी स्टार्ट करना है, तो आपके पास मेरे ख़्याल से अभी इनफ टाइम है, जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो आप इस दरमियान अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकते हैं, और फिर जो है वो ताकि जैसे ही वो खुले सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो आपकी इंशाल्लाह चली जाए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन फ्रॉम अतहर। सर आई एम इन फाइनल सेमेस्टर और नवंबर में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली समर या विंटर के लिए अप्लाई करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री कब आती है। तो मुझे करनी है मास्टर्स इन डेटा साइंस। सबसे बड़ा मसला जो है ब्लॉक अकाउंट का, तो आप ये बताएं कि ब्लॉक अकाउंट को मतलब किस तरीके से स्कॉलरशिप या कुछ डिस्काउंट या रिडक्शन के जरिए टैकल किया जा सकता है। अ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ब्लॉक अकाउंट को टैकल करने के लिए सिर्फ एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर आप वहाँ से डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर दें। तो अगर आपकी जॉब हो जाती है, आप एज अ मतलब जॉब के वर्क वीज़े पे आते हैं, फिर आप यहाँ पे आके जो है वो पार्ट टाइम स्टडीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं।
मगर सिर्फ आप अगर स्टडीज़ के लिए आना चाह रहे हैं तो उस वक्त में जो है वो स्कॉलरशिप के अलावा और कोई भी ऑप्शन आपको आसानी से मिल नहीं पाएगा, या तो फिर ब्लॉक अकाउंट आपको रिक्वायर्ड होगे अनफॉर्चुनेटली। सर स्कॉलरशिप में फिर ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी या फिर अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, ये थोड़ा क्लियर करें। स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलती है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ का जो है वो एक हिसाब इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप देखें कि 11,000 इन्होंने एड किए हुए हैं, 11,000। तो 11,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करें तो ये कुछ 900 कुछ यूरो बनते हैं। तो वो जो है वो ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप 900 यूरोस अपने साथ लेकर आएँ कम से कम 1 साल के लिए। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप लेट्स सपोज 300 की है, तो वो 300 वो माइनस कर लेंगे आपके पास से, बाकी आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इस हिसाब से जो है वो थैंक यू। कुछ कंपनसेशन आपको मिल जाएगी उसमें। बिल्कुल, वेलकम। Thank you very much. So there's another question in the chat, and Taha has also raised his hand. He can also ask, but first let me address that question. Uh, this is, I think, I cannot see the full name. If a permanent resident of Germany offers sponsorship to a student to study, am I audible? या ऐसा आपका आवाज यस आ रही यस है मेरी? जी. यस यस If a यस permanent resident of Germany offers sponsorship ऑफर to a student स्पॉन्सरशिप टू to द study, ये एक ऑप्शन है, मगर ये सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स के लिए है। तो ब्लड रिलेटिव्स के अलावा अगर आप किसी और को स्पॉन्सर करेंगे तो वो अमूमन एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसमें बस यही था। मे बी आई एम क्लियर। do you have any other question? In the list of raised hand, we have Athar, Taha, and Saduddin. तो ताहा, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं सादुद्दीन की तरफ फिर मूव करना चाहूंगा. मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं करना चाह रहा था यहाँ पे जो Yes, go ahead. स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात हो रही है. कैन आई? Sure, sir. हेलो. यस 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 ओके. था। बेसिकली जो स्कॉलरशिप्स में असल में एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मसले आते हैं क्योंकि फाइनेंस करना होता है. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखो, अगर हमारे पास 11,000 का हमें ब्लॉक अकाउंट देना है, तो आप अगर कहीं से अरेंज कर सकते हो वो फाइनेंस तो आप करो. क्योंकि होता ही है, जब आप यहाँ आते हो आपका वीजा सिर्फ 6 महीने का होता है. 6 महीने के बाद आपको यहाँ पे जो इनका आउसलैंडर बिहोल्ड है, जिस तरह से पाकिस्तान में नादरा होता है ना, वैसा यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है. वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है आपको, और उस रजिस्ट्रेशन में आपको एक कार्ड मिल जाता है. दैट मीन्स दैट यू आर अलाउड टू लिव हेयर इन जर्मनी, और उस पर आप ट्रैवल भी कर सकते हो बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इधर आ भी सकते हो. और जब वो, आई थिंक, कार्ड स्टेट टू स्टेट करते हैं उसकी वैलिडिटी. फॉर एग्जांपल हैम्बर्ग में यूजुअली 2 साल का मिल जाता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स को. तो उस 2 साल में आपको दोबारा आउसलैंडर बिहोल्डर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. और जब आप जाते हो तो यू हैव टू शो देम योर फाइनेंस, कि आपके पास बैंक में कितना पैसा है. ठीक है. तो अगर 2 साल तक आपके पास, अगर लेट्स सपोज 11,000 अगर आपने किसी से लोन लिया है, किसी रिश्तेदार से लिया है, तो आप उसमें थोड़ा महीना करके आप उनको वापस कर सकते हो. इस दौरान आप अपनी जॉब ढूंढो, क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आप दिखाते हो उस नादरा ऑफिस, सो कॉल्ड नादरा ऑफिस या आउसलैंडर बिहोडे में, तो वो फिर आपका एक्सेप्ट करते हैं कि ओके, यू कैन, आप अपनी जॉब कर रहे हो, यू कैन बियर योर एक्सपेंसेस बाय योर ओन सेल्फ. और आपको अपनी जो यहाँ का लोकल बैंक होता है जर्मनी का, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी मैच करनी होती है साथ में, ताकि वो देखते हैं अच्छा अकाउंट में पैसा है. डेट मीन्स आप मजीद और सर्वाइव यहाँ कर सकते हो. फिर वो आपको मजीद 1 साल का या मजीद 2 साल का वो दे देते हैं. अगेन ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है. आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, स्टुटगार्ट है कि वहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग है. स्टुटगार्ट एक सिटी है, और मैंने कुछ सुना है कि वहाँ के स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में 1 साल का मिलता है, हमारे मतलब हैम्बर्ग में 2 साल का मिल जाता है.
प्लस ये दूसरा ये कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट कर लिया दैट यू वांट टू अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी, इट्स गुड कि आप उन यूनिवर्सिटीज के जो एडवाइजर्स होते हैं, जो अफेयर्स देख रहे होते हैं, या जो भी आपका कोर्स का कोऑर्डिनेटर होता है, उसका हर डिटेल आपकी उनकी वेबसाइट पे होती है। आप उनको डायरेक्ट ईमेल लिखो। गुड थिंग इज इन जर्मनी के ईमेल का वो लोग विद इन 2 वर्किंग डेज वो लोग रिप्लाई दे देते हैं विद ऑल योर कंसर्न। वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप उनके पूछ सकते हो कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अचीव कर सकता हूँ। में बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी लॉन्च करती है, प्लस इनके और भी मजीद यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं योर सेमेस्टर। तो अगर आपका एक सेमेस्टर आपने अच्छे ग्रेड अचीव कर लिए, आप एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो आपको आराम से, जैसे रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2,000 यूरो के भी स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम डिफरेंट फंडिंग बॉडीज। तो आप अपने फाइनेंस को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ये होती है कि आप जब यहाँ पर आओ तो आई वुड से कि एक सेमेस्टर तकरीबन आप क्योंकि एक सेमेस्टर आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल होता है, यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि आपकी स्टडीज थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी तो नहीं बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान की स्टडी से। तो आप अपनी स्टडीज पे फोकस करो, उसके बाद आप जॉब सर्च करना शुरू कर दो, पार्ट टाइम जॉब्स या वर्क स्टूडेंट जो भी होती हैं, और उसमें अपने फाइनेंस को आप इजीली रिकवर कर सकते हो। काफी ज्यादा सपोर्टिंग है इस पूरे वेबिनार के अंदर। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साबिद्दीन, यू हैव एनी क्वेश्चन? साबिद्दीन, योर माइक इज अनम्यूटेड, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन केस कोई अगर माइक का इशू, आप चैट में भी अपने क्वेश्चन, कोई भी पार्टिसिपेंट अगर वो माइक पे नहीं करना चाहते, वो चैट पे भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सादुद्दीन, या आपके मैंने चैट पढ़ी भी, स्टिल नॉट ऑडिबल जी। मुझे आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। बाकी पार्टिसिपेंट किसी को अगर आ रही है तो बताएं प्लीज़। आप अपने चैट पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, किसी का भी क्वेश्चन है, अगर वो माइक पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उनको इशू आ रहा है, तो क्वेश्चंस जो है वो चैट पे भी आप लोग अपने टाइप कर सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, मीनवाइल मेरा एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आरिफ से भी हैं। अच्छा, आरिफ ने जो है फिनलैंड की, वहाँ से ही इनका आगे का आफ्टर ग्रेजुएशन पूरा जर्नी है, और वो अच्छा जर्नी उन्होंने अपना शेयर किया था आरिफ ने। तो अच्छा, और यहाँ पे आप आरिफ देख सकते हैं कि जो फोकस है वो ऑडियंस का जर्मनी की तरफ ज़्यादा है, जैसे कि यूजुअली पाकिस्तान से लोग जर्मनी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन तो यही था कि आपने फिनलैंड को किस तरीके से आपने, मतलब वाई वाई फिनलैंड ओनली, आपने जर्मनी क्यों नहीं ऑप्ट किया? और आपने मतलब फिनलैंड अप्रोच करने की जो लिंक्स शेयर किए हैं, इन्हीं के थ्रू किया था, या कोई और उसके अलावा आपने गाइडेंस किसी से ली थी, अपने किसी सीनियर से या किसी भी इस तरह से? तो इस तरह थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज। जी जी बदर भाई। सो बेसिकली फिनलैंड एज अ कंट्री पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, बट रिसेंट ईयर्स में, लेट्स से पोस्ट कोविड मैं कहूँगा, तो यहाँ पे इनफ्लक्स आ गया अभी। एटलीस्ट जिस जगह मैं रहता हूँ, ये पूरा एरिया पाकिस्तानी से सराउंडेड है, और so I'm not sure why it's so. People should explore this country. There's amazing opportunities. Maybe इतनी awareness पाकिस्तान के different forums में as such फैलाई नहीं गई. So that might be the reason. बट होता यहाँ पे ये है कि जैसे जर्मनी के लॉस रिसेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड हुए इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन। यहाँ पे भी इट लिटिल बिट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ओरिएंटेशन राइट की तरफ है, जिसकी वजह से ये लोग पार्लियामेंट के फोरम से कुछ स्ट्रिक्टर पॉलिसीज इमिग्रेशन के लिए, जैसे यूरोप में होता है, तो वो इट्स अप एंड डाउन चलता रहता है। अच्छा, जहाँ तक मेरी अपनी जर्नी की बात है, तो बैक इन 2015
अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि ऑप्शन है, तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था। और उन दिनों आई वॉज इन द लास्ट सेमेस्टर और मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था अभी। तो एट दैट पॉइंट आई वॉज लुकिंग, जर्मनी से मैंने स्टार्ट किया। तो कहीं जर्मनी के जैसे फेसबुक पे पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छे फोरम्स मेंटेन किए हुए हैं, यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। तो वहाँ पे कहीं मुझे फिनलैंड का ऑप्शन भी नज़र आया। तो मेरे कोई सीट, मैं स्कर्दो केड कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मेरे कोई सीनियर थे, ही वाज स्टडिंग इन ब्रेमेन एट दैट टाइम। तो उनसे थोड़ा डिस्कशन करने के बाद सो आई केम अक्रॉस टू नो फिनलैंड इन जनरल। और उस स्पॉट पे ये हो रहा था कि 2015 का टाइम था और ये र्यूमर्स चल रहे थे कि फीसें लग रही हैं, फीसें लग रही हैं, तो यू शुड हरी अप। तो मैं बेसिकली आई डिडंट इवन वेट टू ग्रेजुएट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप 7वें सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हो एज अ, जैसे पाकिस्तान में हम होप सर्टिफिकेट कहते हैं। तो मैंने उस बेसिस पे अप्लाई कर दिया था और आइट्स आइट्स उस टाइम पे दे दिया था। तो नॉट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, इट टर्न आउट टू बी अ रियली गुड डिसीजन। और स्पेसिफिकली जो सिटी मैंने चूज किया, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट टेलको सेक्टर से था। और दो के मेरी बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, लेकिन तो बेसिकली ये वो टाइम था यहाँ पे जब 5G की रिसर्च स्टार्ट हो गई थी एकेडमिया में। तो बेसिकली ड्यूरिंग द जर्नी मैंने मतलब 5G को ग्रो होते हुए देखा, इधर फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, और यू नो स्टैंडर्ड, पहली स्टैंडर्डाइजेशन हुई और फिर इंडस्ट्रियल रोल आउट हुआ। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट डिपेंड्स अ बिट कि आपका 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 फोकस एरिया क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। फाइनेंशियल साइड भी है इसमें ऑब्वियसली। तो आई थिंक वन मोटिवेशन फैक्टर ये था कि फिनलैंड में जब हम अप्लाई कर रहे थे तो ब्लॉक अकाउंट नहीं था। सो बेसिकली यू डोंट नीड टू सेंड एनी मनी एनीवेयर। तो आपने बेसिकली कोई स्पॉन्सर, आपके फादर हो सकते हैं, इट कुड बी समबडी इन योर ब्लड रिलेटिव्स, और आपने वो पैसे ट्रांसफर करने अपने अकाउंट में, एंड देन यू हैव टू शो द मनी ट्रेल, एंड दैट वाज ऑल रिक्वायर्ड। तो मुझे पर्सनली ये प्रोसेस उस पॉइंट पे जर्मनी से इजी लगा। uh, तो that was maybe one of the reason also I chose Finland. But Germany is an amazing country for sure. मैं पिछले couple of weeks पहले हैम्बर्ग में था। तो I think it doesn't matter where you go within Europe. I think there's always possibility कि आप relocate हो सकते हो। Maybe Germany से Finland में I see a lot of people who have relocated here for job reasons, for other reasons. So it depends a bit on your interests and sort of योर फील्ड। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जैसे फिनलैंड में जो लोग नॉन आईटी डिग्रीज या नॉन आईटी फील्ड्स में आते हैं, दे डू स्ट्रगल अ लॉट गेटिंग जॉब्स एंड सो ऑन। सो मतलब एक सेक्टर, एक कंट्री के लिए काफ़ी फेवरेबल है। बाकियों में भी ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ह्यूज है, और फिनिश लैंग्वेज सीखनी इतनी आसान नहीं है। सो और दिस, I think you have to be in the country to be able to learn the language, I would say. So I hope I've answered the question. थैंक यू वेरी मच। वी हैव क्वेश्चंस इन चैट्स एज वेल। सादुद्दीन का क्वेश्चन है कि आई एम मैकेनिकल ग्रेजुएटेड इन 2022 विद 3.8 GPA माशाल्लाह। I've been working as .NET web developer. I think after mechanical he has switched his field to computer science. जो मैं समझ पा रहा हूँ, I have been working as .NET web developer for I want to do masters in AI. Will I face any difficulty in getting admission in Germany and Finland? यानी मैकेनिकल में उनका ग्रेजुएशन है और .NET वेब डेवलपर के तौर पे वो काम कर रहे हैं और मास्टर्स एआई में करना चाहते हैं। तो जर्मनी फिनलैंड में उनको एआई के फील्ड्स से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर मास्टर्स में कोई प्रॉब्लम होगी एडमिशन लेने में? आई थिंक ये दोनों से क्वेश्चन कर रहे हैं, एहसन से भी कर रहे हैं और आरिफ, दोनों, आप दोनों से क्वेश्चन कर रहे हैं। Ahsan bhai, should I go first then? बिल्कुल 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 आरिफ भाई, Okay, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। जी अच्छा। जी। सो सादुद्दीन भाई मैकेनिकल ग्रेजुएट, सो आपके प्रोफाइल अच्छा है। AI से रिलेटेड फॉर श्योर यू कैन, व्हाई नॉट। मतलब मेरे पास मैकेनिकल से स्पेसिफिक्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं
कि जैसे नोकिया एज ए कंपनी यहाँ पे इनकी R&D है, अक्रॉस द ग्लोब है, इवन पाकिस्तान में भी इनके ऑफिसेस हैं। आई थिंक डिग्री, एटलीस्ट फिनलैंड के परस्पेक्टिव से मैं बोल सकता हूँ कि आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, कि आप फर्दर क्या लाइन सजेस्ट कर। ऑब्वियसली जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो उनकी ये रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज आपने किए, मतलब लेट्स से कि मैकेनिकल से रिलेटेड आपने 20 क्रेडिट्स ECTS में किए हों, ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूर हैं। लेकिन कोई हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कि यू कैन नॉट स्विच योर फैकल्टी। और जहाँ तक जॉब की बात है तो जिस जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्शन में मैकेनिकल इंजीनियर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड इवन जो बिजनेस बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग इन लाइक टेक कंपनीज। सो वो काफ़ी डाइवर्स, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोल्स होते हैं। तो आई थिंक यू यू कैन फिट इन, आई थिंक। Hope that answer your question. एहसान काइंडली आप प्लीज इसमें जर्मनी के पर्सपेक्टिव से बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर्स के लिए आप अपनी डिफरेंट फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं जर्मनी में, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है एज अ मैंने इस चीज़ को जो है वो देखा है। मेरा एक दोस्त जो है वो अकाउंटिंग से जो है वो AI की फील्ड में आया है यहाँ पे, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी इसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, कारआमद है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक मसला इसमें ये आता है कि आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है AI में, हो सकता है आप मोस्ट एक्सपेक्टेड कि आपको एडमिशन मिल जाए, मगर मसला आ जाता है फिर एम्बेसी वालों का, कि एम्बेसी वाले फिर आपको तंग करेंगे कि यार आप इतना चेंज क्यों क्यों कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब आपको अपनी मोटिवेशन कम्प्लीटली शो करनी पड़ेगी। तो इसमें एक और तरीका आप इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि आप दो जगहों पे एडमिशन अप्लाई करें, एक AI में और एक मैकेनिकल फील्ड में। तो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हो तो आप मैकेनिकल फील्ड का जो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आया हो वो आप जो है वो शो करें, और आप यहाँ पे आके जो है वो अपनी एनरोलमेंट जो है वो जो आपका मास्टर्स इन AI था आप वहाँ पे जाके करवा दें। तो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी थी, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो दोस्तों ने मिलकर डिस्कस किया था, तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही थी यहाँ पे ना। बाकी ये है कि अगर आपका वीज़ा AI पे ही एक्सेप्ट हो जाए तो अच्छी बात है, मगर ये है कि एडमिशन लेने में शायद आपको मसला ना हो AI में भी। एंड आई थिंक सैफुद्दीन ने फिर से एक और सवाल किया था कि वो जो है वो इसको स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम मिल नहीं पा रहे थे स्पेसिफिक टू AI। असल में जो है वो स्पेसिफिक टू AI जो है वो कोई स्कॉलरशिप फंडिंग नहीं होती है। स्कॉलरशिप फंडिंग बहुत सारी जो है वो स्पेसिफिक फील्ड के पे भी जो है वो होती है, मगर जो इंजीनियरिंग की जो मतलब जितनी भी फंडिंग है या जो जनरल फंडिंग है वो सब जो है वो AI के लिए एक्सेप्टेबल होगी आपके। रिप्लाई कंप्लीट हो गया ऐसा? हाँ ऑल मैं राइट, अच्छा अब इसमें जी जी इन्होंने मेरे ख्याल से एक और सवाल पूछा है नीचे सबसे आखिरी में, कि एम्बेसी में जो है वो मसला होगा, वो मैंने आपको अभी जैसे डिस्कस किया कि वर्किंग इन AI जो है वो हो सकता है आप उसको टैकल कर सकें एम्बेसी में, और क्योंकि आप वर्किंग .NET पे कर रहे हैं तो आप बेसिकली इसको इस तरह से टैकल भी कर सकते हैं। मगर आप दूसरा तरीका जो है जो मैंने आपको बताया कि आप मैकेनिकल का एडमिशन लेंगे वो आप शो करा दे तो एम्बेसी वाले जो है वो सेटिस्फाई जल्दी हो जाएंगे आपसे। मेरे ख्याल से मैं सादुद्दीन मैं क्लियर हो गया हूँ, आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया है? ऑल राइट, मीनवाइल उनका रिप्लाई हमारे पास आता है तो एक क्वेश्चन हमारे पास और भी था। सैफ का क्वेश्चन था ये कि माय नेम इज सैफ अली एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एट दाऊद यूनिवर्सिटी विद एन इंटरेस्ट इन आईटी प्रोग्रामिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद अब ये आईटी प्रोग्रामिंग साइड पे आना चाहते हैं। आई हैव सीन
Many electronics students pursuing master's degree abroad. Are there similar opportunities and scholarships like Erasmus Mundus and DART for industrial engineering students? तो आईटी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं. और also I've been pursuing generative AI from governors in IT initiative 1A program along with my studies. तो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कितना इनको सपोर्ट करेगा, ये जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम इनका है ये, तो ये इनको कितना सपोर्ट करेगा इनके आगे मास्टर्स में अप्लाई करने में. इनका क्वेश्चन बेसिकली ये कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद अभी पूछना है कि आईटी साइड की तो बहुत सारी हैं, उनको दिख रही हैं अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में एरास्मस मुंडस और डार्ट स्कॉलरशिप्स इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वो ये पूछना चाह रहे अ, इसका आंसर भी तकरीबन सेम ही है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो जनरल हों या जो इंजीनियरिंग से हों, तो वो जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को भी जो है वो कवर करती हैं. बाकी ये है कि अगर आप आईटी की साइड पे आना चाह रहे हैं, तो आईटी के बेसिकली डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, टेलीकॉम है. तो आप किसी भी प्रोग्राम में लाजमी एडमिशन ले सकते हैं. और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल है इन किसी भी जो है वो आईटी सेक्टर में आपका जाने के लिए. Maybe I am clear with your question. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, और जो क्वेश्चंस हमने इस यहाँ पे आई थिंक सारे कवर कर लिए हैं. अगर मैंने कोई मिस किया हो, फिनलैंड में स्टडी फ्री है, एक्सपेंसिव है फॉर स्टूडेंट? आई थिंक इस पे तो पूरा वेबिनार हमारा कंडक्ट हो चुका है और उसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हुई हैं. और ताहा का क्वेश्चन था कि हाउ वन कैन अप्लाई फॉर जॉब एंड मास्टर थीसिस इन फिनलैंड, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स? तो ये आप आरिफ, आपसे क्वेश्चन, आई थिंक इट्स 2 आवर वेबिनार, तो आई थिंक इसको हम अपना लास्ट क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो आरिफ इस क्वेश्चन को काइंडली आप अगर आंसर कर दें. हाउ कैन वन अप्लाई फॉर जॉब इन मास्टर थीसिस इन फिनलैंड, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स? जी बदर भाई. सो ताहा भाई, आपका प्रोग्राम कौन सा है? आप मास्टर्स कर रहे हैं या आपने बोला आप जॉब कर रहे हैं, राइट? हेलो जी, मेरा मेरा एक्चुअली प्रोग्राम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है जी और स्पेशलाइजेशन मेरी एम्बेडेड में है और इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर मुझे थीसिस करनी है, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है. जी. तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप इंडस्ट्रियल थीसिस करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं. बेसिकली इंडस्ट्री वुड पे यू अ लिटिल बिट मोर, और फिर वो कंटिन्यूएशन होती है if there's job opportunities or so on. और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, आई थिंक यू बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे उनकी ओपन पोजीशंस देखनी पड़ेंगी. ऑफन टाइम्स ये होता है कि आप डायरेक्टली प्रोफेसर के थ्रू भी ले, क्योंकि फंडिंग्स होती है ना, अगर आप एकेडमिया साइड पे थीसिस करना चाहते हैं. अब चूंकि आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी शो किया कि अगर आपका इंटरेस्ट एकेडमिया में है फॉर एग्जांपल, तो फिनलैंड ने रिसेंटली एक पूरा डॉक्टरल पायलट जो कि 3 साल की पीएचडीज देगा और इट्स फुली फंडेड, उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो सॉर्ट ऑफ. और हमारा इधर ओली यूनिवर्सिटी में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको 6G फ्लैगशिप बोलते हैं. उसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं. लेट्स से उसका टेलीकॉम एक साइड है जिसमें 6G को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है. और उसका फिर जो एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन है, सो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स शुड बी पार्ट ऑफ दैट आल्सो. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि you could try companies like Nokia, Kone और others. वो हमेशा हायर कर रहे होते हैं. और all the time I have a lot of examples. यहाँ पे इस्टोनिया से इवन यूएस से भी लोग रिलोकेट होकर आए हैं. तो और यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन है. तो ओलू यूनिवर्सिटी का आप ज़रा ये 6G फ्लैगशिप प्रोग्राम चेक कीजिएगा. और
इनका जो डॉक्टरल एजुकेशन पायलट है, अगर तो आप बाय दैट टाइम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो दैट इज आई थिंक गुड गुड रियली गुड अपॉर्चुनिटी। और वैसे इंडिविजुअल लेवल पे भी यहाँ का जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है ओलू यूनिवर्सिटी का, उसके आप जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर आपको 6G फ्लैगशिप या सेंटर फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन में हेल्प चाहिए तो सो प्लीज रीच आउट टू मी। मैं वहाँ पे तीन तीन साल काम कर चुका हूँ पहले। और इफ अगर नोकिया के हवाले से, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट या बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, देयर इज नो वन स्पेसिफिक, बट होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah. I'll consider. Thank you so much. Thank you very much. I think we have catered all the questions. एंड ऑल्दो पूरा सेशन हमने ज़ाहिर है कि इसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को कवर किया। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अगेन हमारे स्पीकर्स का कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे अलमनाई हैं, उनको गाइड किया। इसमें बस ये कि मैं जैसे कि जो क्वेश्चंस को जो मैंने ओवरऑल देखा, तो उसमें मैंने एक चीज़ जो नोट की, थोड़ा सा जो हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे इनपुट ज़रा कम इसके अंदर लगा। और उनकी तरफ से क्वेश्चंस भी कम आए, और जो हमने स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, वो भी हमने जाहिर सी बात है कि एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस किया। ऑल दो सेशन जो था वो ओपन फॉर ऑल था, तो उसमें सबको अलाउ था आना और किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो इंशाल्लाह अब ज़ाहिर है कि ऑलरेडी 2 आवर्स का टाइम पूरा हो चुका है, फिर कभी इंशाल्लाह हम ऐसा कोई सेशन में इस तरह की पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करेंगे जिसके अंदर स्पाउस में अगर कोई, जैसे कि एक फीमेल स्टूडेंट है और वो अपने किसी हस्बैंड को बुलाना चाहती है, तो उसको वो उस पॉइंट को भी हम कवर करें। ऑल दो टाइम काफ़ी हो चुका है, इसलिए हम मजीद क्वेश्चंस को कैटर नहीं कर सकते। हमने वैसे 25 मिनट्स को डेडिकेट किया था, लेकिन अराउंड 1 आवर हमने क्वेश्चन आंसर्स को सेशन को डेडिकेट किया है। तो अब हम आई डोंट थिंक हम मजीद क्वेश्चंस को हम गेटर कर सकेंगे, बट आई वुड इनकरेज कि जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट इक्वली करें। नाउ आई वुड लाइक टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज द vote of thanks. Unfortunately, Dr. Mohammed Rauf couldn't join, so I would request Dr. Sami to kindly please give vote of thanks. Okay. बहुत शुक्रिया बदर। असल में कोशिश कर रहा था मैं कि रऊफ साहब कनेक्ट हो जाएं, लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम है, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, थोड़ी सी पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की कम रही, उसकी एक वजह ये भी थी कि सैटरडे था, लेकिन यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स स्केड्यूल हुए थे 1 से 2 दिन पहले, क्योंकि एंड चल रहा है एग्जाम्स का, तो शायद इसलिए भी तो पार्टिसिपेशन की इशूज रहा। लेकिन नेवरदलेस वी हैव अ वंडरफुल सेशन, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आरिफ का और एहसन का, आपने रिमोटली ज्वाइन किया हमें, और बदर आपने बीच में कोऑर्डिनेशन की, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं वो स्टूडेंट पोस्ट भी कर सकते हैं चैट रूम में, अगर हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं उसको बाद में जब भी उनके पास टाइम हो उसको रिप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये है कि इस तरह के सेशंस करवाने का मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स को जो है ना पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन मिल सके और करंट इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो वेल अवेयर हो सके सिचुएशन से, क्योंकि पॉलिसीज चेंज हो रही है, इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज हो रही है, स्टूडेंट्स इमिग्रेट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको इमीडिएट जो है ना पता नहीं है क्या चेंजेस हो गई हैं। तो ऑब्वियसली कुछ चीजें जनरली पता है उन्हें कि हाइट्स देना है, एडमिशन की डेट्स भी पता होती हैं, लेकिन ब्लॉक अकाउंट में क्या वेरिएशंस आ गई, क्या चेंज आ गई है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं देख रहा था कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा सवाल कर रहे थे, और हमारे पास भी आते हैं। बेसिकली हम लोग जब कैरियर काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं, तो खैर ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आखिर में फिर आप सबका, स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस सेशन को हम एंड करते हैं। जी शुक्रिया बदर। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये इवेंट हम कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकते थे। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल दाऊदीन एज वेल। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू अगेन गिव अ बंडल ऑफ थैंक्स टू सर तलहा एज वेल, जिन्होंने मुझे डॉक्टर समी से लिंक करवाया। एंड डॉक्टर समी और माशाल्लाह आपकी पूरी टीम बहुत एक कॉम्पिटेंट टीम, जिसके ऊपर हमने कॉपरेशन
कोलैबोरेशन करके ये सेशन कंडक्ट करवाया। हमारे स्पीकर्स जिन्होंने इसके अंदर अपना टाइम निकाल के उतना अच्छा ज़बरदस्त जो स्टूडेंट्स को गाइड किया, कि इस वक्त जाहिर सी बात है कि हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल हो। So thank you very much, all of the Dawood team, and to all the students and alumni and all the participants. And इंशाल्लाह फिर हम आगे फर्दर कोलैबोरेट करके और इस तरह के सेशंस फ्यूचर में कंडक्ट करेंगे। चैट रूम, जैसे डॉक्टर समी ने कहा, आई एम वेरी मच थैंकफुल, चैट रूम अभी भी ओपन है। आप अपने क्वेश्चंस और करते हैं। जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ स्लाइड्स और कंटेंट की वो बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सेशन एंड भी हो जाएगा तो चैट रूम ओपन होगा, तो वहाँ पे वो सारी तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं, स्लाइड्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, जहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इंशाल्लाह फिर कभी हम जो है बस यहाँ से और सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Thank you so much. Allah Hafiz. Best of luck, everyone. You